ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਲਿਆਓ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਖੇ ਮੇਰੇ रसूलुल्लाह दी किश्ती रसूलुल्लाह वाली ख्वाब कड्डो सुनाओ जरा पता चले फतवा लगाओ साडे ते भी लग गया तो उन्हां ते भी लाओ जरा फतवा भाई ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੋ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ख्वाब ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ ਭਾਈ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਪੜਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਿਆ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਰਸੂਲullah ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਾਬ ਇਲਹਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਬ ਇਲਹਾਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਖਾਬ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਪੜ ਕੇ मैंने वो दिखाई नहीं दे रहे मुझको अपनी निस्बत ये इल्हाम हुआ हाँ इल्हाम हुआ तो ख्वाब दा ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ और बड़ी करके लाओ पूरी उससे आए फिर पढ़ के सुनाओ पढ़ के सुनाओ नजीर साहब पढ़ के सुनाओ हुण तो पढ़ लोगे ना जड़े ने ना मैसेज कमेंट डिलीट कर दे यार अपना म्यूट कर दे मुझको अपनी निस्बत ये इल्हाम हुआ खुदा ने इरादा किया है खुदा ने जी बिल्कुल ए खुदा दे वाले नाल गल जे खुदा ने ये इरादा किया है हाँ जी तुसी खुदा दी गल ते यकीन नहीं रखदे रखने जी बिल्कुल ते फिर खुदा ने आख्या कि तेरा तख्त सब ते ऊंचा बिछाया गया है और तेरे नाम की चमक लिखा हुआ है आसमान से हाँ कई तख्त उतरे मगर सबसे ऊंचा तेरा तख्त बिछाया गया ए खुदा मुखातब करके उन्होंने पे आखदा है खुदा उन्होंने मुखातब करके पे आखदा है जिदा नाम उन्हें खुदा रखे ना वो पे उन्होंने मुखातब करके आंदा है कि आसमान तो कई तख्त उतारे गए ने तेरा सब तो ऊपर है हुण दसो ये नबी पाक दे दुश्मन ने के गुलाम ने नहीं गुलामी दा है ना दावा ते गुलामी दा एक दावा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ दावा ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਤਖਤ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ तमाम ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਵੀ ਹੈ ਈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਵੇ ਟੱਚੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਤਖਤ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ
ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ? ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ। ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਜਲਦ ਲੈ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਰ ਰਵਾਨ, ਇਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਕੰਬਲ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕੰਬਲ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਇਸ ਕੰਬਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੰਬਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕੰਬਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕੰਬਲ ਹੈ? ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਦੋ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਪਈ। ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਠ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਲਦ ਸੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਊਠ ਦੜਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਬਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਢਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਢੱਠੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਖੌਫਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨੇ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਟ ਗਿਆ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਧਰ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ,
ਕੁਫਾਰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਫਾਰ ਮੱਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਉਹਦਾ 90 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੁਸੀਂ 130 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ, 130 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਚਤ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਖੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖਲੀਫਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਲਾਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ? ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛਲਾਂਗ ਨਾ ਲਗਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹਾਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੇਗ ਇਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤਰੀ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਾੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੁਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਿਸੀਏ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਬਹਿਸੀਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैंने लगता है नज़ीर साहब ने ताज़ा किसी मिर्ज़ा ताहिर साहब की कोई वीडियो देख ली, क्योंकि बिल्कुल अंदाजे बयान होना तो भी इंतहा ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं जोसेफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕੀ ਨਹੀਂ। आमिर भाई एक गल दसो कि जोसेफ साहब मेरे ਨਾਲ के अंदर कैलेंडर का जो मसला है, दोस्त ने जैसे ये हर 2 साल के बाद एक महीना लीप का लगाते हैं, जोसेफ साहब इस्लाम के अंदर भी कोई ऐसा कैलेंडर का है कि आप लोग भी कोई लीप ईयर लगाते हैं या नहीं लगाते? कोई इस्लामी कैलेंडर में कोई नहीं है लीप का सर। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਲਦੀ क्योंकि खतरा है। अच्छा नज़ीर साहब, क्या आप लोगों के अंदर जमात अहमदिया के अंदर कोई लीप ईयर लगाया जाता है? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं, मुझे कैलेंडर के बारे में इतना ज्यादा आप लोगों को पता नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ? कैलेंडर के बारे में नहीं पता मुझे।
ਉਹ ਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। उन्होंने तो बता दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं लगाते लीप ईयर। ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। अच्छा, नहीं दावेदार तो वैसे आप हैं। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੀਪ ਈਅਰ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲੈਣਾ। ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸੂਲ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਕੀਆ ਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ کہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت کی وفات 26 مئی کو تھی، اور اگر آپ 1908 میں فوت ہو جاتے تو ایک چند معندی سلسلہ شور مچا دیتے کہ ہماری پیش گوئیوں کی مراد کے اندر فوت ہوئے، اور ایک کہ یہ اس وقت 28 تاریخ کو آپ کی 26 تاریخ کو آپ کی وفات ٹھہرتی، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی وفات لیپ ایئر جس سال میں فروری کے 29 دن میں ہوتی، تاکہ پورے 322 دن کے بعد 26 مئی کو وفات ہوتی۔ پس صاف ثابت ہوا کہ آپ کی وفات 1908 میں ہونی چاہیے تھی، جو کہ لیپ ایئر ہے۔ مینوں بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ لیپ ایئر مہینے دا لینا دینا تے تورات دے نال بھی کوئی نہیں ہے، مسلمانوں دے نال بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لیپ ایئر مہینہ اس وقت موجودہ یہودی لگاتے ہیں، یہ تو تورات سے ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ لیپ ایئر مہینے کو سچائی اپنی کیوں بنا رہے ہیں جی عمر بھائی؟ اصل میں نا ایک الہام ہے مرزا قادیانی کا، وہ میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے حماد بھائی، وہ الہام کیا ہے؟ فارسی کے الفاظ ہیں اس کا پنچر تیار کیا تھا یہ بشیر الدین محمود احمد نے۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گھوم رہے، میں نے فیس بک پہ بڑے سال پہلے اس پر پوسٹ لکھی تھی۔ وہ اس الہام کی وضاحت کرتے ہوئے موت کے یہ دن گنے گئے تھے کہ یہ جو الہام تھا نا اس کا یہ معنی ہے اور اتنے دن بنتے ہیں، اور اس لحاظ سے موت بنتی تھی 1907 کو، لیکن وہ لیپ ایئر لگا کے، کیونکہ اگر 1907 کو ہو جاتی تو پھر وہ پورا نہیں ہونا تھا، تو وہ لیپ والا سال کیونکہ 1908 کا تھا تو اس لیے 1908 میں وہ دن پورے کر کے پھر بھی وہ پنچر پورا نہیں آیا۔ اب میرے ذہن میں وہ پوری بات جو نا نہیں رہی، لیکن بہرحال اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بات آپ پڑھ رہے ہیں یہ بشیر الدین محمود احمد کی بات ہے، اور یہ اس نے اس الہام کی تشریح میں یہ بات کی جو فارسی کا الہام ہے۔ پتہ نہیں درامن ہاں میرے ذہن میں نہیں ہوا ہے حماد بھائی، درامن اس طرح کے الفاظ ہیں، درامن آگے کچھ اور لفظ ہے، میں یار دیکھتا ہوں، دیکھنا پڑے گا، بولنا پڑا۔ اچھا نہیں، میرا مدعا تو چلے وہ آپ نے بیان کر دیا ہے، لیکن لیپ ایئر کو مطلب اپنی سچائی کا نشان بنانا یہ کوئی درست بات تو نہیں، کیونکہ لیپ ایئر جو ہے یہ تو یہودی لگاتے ہیں اور یہ تو تورات کے بھی سری خلاف ہے۔ او جوزف صاحب، تند نہیں ٹوٹی تانی بگڑی ہے۔ مرزا صاحب دے بارے انہوں دا جڑا نا لکھن والا تاریخ احمدیت لکھن والا کہندا ہے کہ مرزا صاحب نے 1896 چ جنہ مولویاں نو تے گدی نشیناں نو تے پیراں نو تے صوفیاں نو چیلنج کیتا سی نا موبائل دا، انہاں چوں سارے فوت ہو گئے مرزا صاحب دی زندگی دے وچ ہی، لیکن پھر انہوں خیال آیا کہ پیر مہر علی شاہ تے نہیں فوت ہوئے، مولانا ثناء اللہ امرتسری تے نہیں فوت ہوئے، شیخ بٹالوی تے نہیں فوت ہوئے، اور اسی طرح کئی اور نے۔ کہندا جو چاندے کہ زندہ رہ گئے وہ احمدیت کی ترقی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ یعنی جڑے مر گئے وہ بھی احمدیت کی ترقی، وہ بھی مرزا صاحب کی سچائی دی دلیل نے، جڑے زندہ رہے وہ بھی سچائی دی دلیل۔
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਤਾਈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰੋਕੋ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਆਏ ਮਿਲकर ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਰੋਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁਲਬਲਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆਲਮੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਨੇ ਕਿ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, यानी वो आवाज ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਬਲ ਪਏ ਤੇ ਬਲ ਪਏ, ਬੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਰ, ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁੱਕਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। मिर्जा साहब की कोई ना इस्लाम खंजर से कत्ल होने के बाद परिणाम बना लिया है, पेशेंगोई कहा कि मैंने पहले कर दिया। मौलाना सनाउल्लाह अहमद नसरी ने उसका ऑपरेशन किया था कि भाई तुम्हारे पहले इल्हाम में या उसमें कहाँ थी ये। जब बाद में जब पता चला तो फिर खंजर भी का भी इजाफा हो गया। तो अच्छा जी, छुरी का इजाफा हो गया। पहले तो कहा था खार के आदत तेजाब नाजुल होगा, बाद में कहा मैंने ये पेशगोई की थी कि ये 6 सालों में छुरी से मारा जाएगा, हालांकि छुरी का तो वहां पर जिक्र ही नहीं है, झूठ बोला है। अभी जो जापान पर्यटन का भारत में सोचता था कि ये भी कोई निशानी होगी, अब पता चला। उस दिन भाई कोई पढ़ रहे थे, ये जो मुफ्ती मुबशर कानून जो है ना, उसका वो किस्सा सुना रहा था कि 11 अहमदी तबलीग के लिए गए थे, तो बादशाह ने उनको गोली का हुक्म दिया था, तो एक हफ्ते के बाद उस पर अमल दरामद होना था, तो उससे पहले ही एटम बम गिर गया जापान पर। अच्छा, मैं क्या और शायद गोली मारी होनी है, लेकिन गोली सामने जाके रुक गई, जैसे वो अक्सर वो उनकी तामिल फिल्मों के अंदर नहीं दिखाते, वो गोलियां चलाते हैं और गोलियां लगती नहीं है। आमिर भाई, अगर इस तरीके से इन्होंने अपनी सच्चाइयां बयान करनी, तो फिर सिम्पसन कार्टून वाले तो सबसे बड़े सच्चे हो गए ना। वो 20 साल पहले ही बयान करके रख देंगे ना। नहीं, ये तो हमारी आंखों के सामने वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में वो 3 नजूमी बिठा कर रखता था और कहता था बताओ कल मैच कौन जीतेगा क्रिकेट का, वर्ल्ड कप हो रहा था ना, तो वो नजूमी बताते थे एक ਹੁਣੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। तो सारे तुक्का पे मार देने में भी मार देना, पाकिस्तान हारेगा। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ठीक है जी, ठीक है। नज़ीर साहब ने आख्या ना कि जलील होंदे ने जेड़े ਜੇ ਬੱਬੂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘਾਟ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं जी नहीं, मैं शर्त नहीं लांदा। अच्छा, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰਾਤ 'ਚ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁਏਬ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੀ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ।
ਆਣਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸੋਇਬ ਰਾਜਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਹੋਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲੈਣ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਉਹ नहीं करन देंगे गल। भाई नए साथी आए हैं, बात कर लें। सिकंदर भाई क्या हाल है? शीदा टली साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान है क्या उधर है? नहीं, मैं उधर ही हूँ। तो क्या वक्त हुआ? रात के 10 बजे हैं? हाँ जी, अभी रात के 10:15 हैं। पाकिस्तान गया हुआ तो मैं ये पिछले साल सितंबर में। अच्छा टाइम मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये तो सोने का टाइम है आपका। ऐसे तो रमात भाई भी बैठे हुए हैं। नहीं, मैं नाइट शिफ्टर हूँ, मैं बस फिलहाल उठा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਾਤ को। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाल बच्चा राजी बाजी है? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत है? यार वो एक ऑस्ट्रेलिया में मिर्जाई है, वो बड़ी गालियां देता है, वो अहमद भट्टी। वो हमें भी गालियां देता है, अपनों को भी गालियां। वो किधर रहता है? मेरा मेलबर्न में रहता है शायद। अहमद भट्टी बड़ी गालियां देता है जी। जब भी उसकी कोई वीडियो कोई बंदा सेंड करता है ना, पहले मेरा नाम आगे रखा होता है, फिर अपनों को लताड़ता है। कहता है इसमें तो ईमानी गैरत, ये तो बगैरत है। डॉक्टर जिक्रिया तो बगैरत है। उसके मुंह पे बैठ कर कह रहा था ना, सामने बिठा के उसको कह रहा है। मियाँ फेवरेट 49 को कहता है ये तो चट मशीन है, ये तो चटने वाली मशीन है। वो बड़ा ही कोई गालीबाज है। तो मैंने कहा वो कहाँ रहता है? नाम जो है ना ये मेरे लिए नए हैं। बात ये है कि मैं टिकटॉक पे जो है ना तकरीबन 1.5 महीना पहले आया हूँ। फिर बीच में रमज़ान आ गया। रमज़ान बिल्कुल मैं टिकटॉक पे नहीं आया। तो ये सारे तकरीबन नाम जो है ना ये तकरीबन सारे मेरे लिए नए हैं। हाँ, कुछ साथियों को पुरानों को मैं जानता हूँ। मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है मेलबर्न से ही हो। नहीं, वो अहमद भट्टी जो है ना वो व्हाट्सएप पे भी था अब आजम सैफी के ग्रुप में, लेकिन आखिर में आया है ये जब हम इधर आ रहे थे ना 1 साल पहले आया है, तो व्हाट्सएप में वो आया है लेकिन लेट आया है। तो हैंडीकैप है। वैसे तो हैंडीकैप का तो आपको पता ही है कि ऐसे अमूमन जो होते हैं ना बड़े जहरीले होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं ना। तो वो पता नहीं कह रहा है मुझे ना, वो दूसरे मिर्जाई ने मियाँ फेवरेट 49 ने कुत्ते का बच्चा कहा है। कहता है मेरा बाप अब हाफिज़ कुरान है, मुझे अब कुत्ते का बच्चा कहा है। अब मुझे कहता है मेरे बाप को कुत्ता कहा है, वो हाफिज़ कुरान है, तो मैं इसको क्यों ना कुत्ते का बच्चा कहूँ। उनको भी गालियाँ देता है, हमें भी गालियाँ देता है। तो उधर ऑस्ट्रेलिया में होता है वो केला ही मिर्जाई है, बड़ा गालीबाज है यार। नई बार आलो हो सकता है यहाँ पे ही हो। मैं कोई आवाज वगैरह सुने ना तो फिर शायद मुझे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये जो मिर्जाई वगैरह पप्पू के रिश्तेदार जो गालियां देते हैं इन्हें, पता है क्यों देते हैं? जी, वजह इसकी ये है कि आम जिंदगी में भाई सॉरी पीर साहब, फिर आपने बोला है मेरे रिश्तेदार। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इज्जत अपने इंसान के खुद के हाथ में होती है। मेरा कोई मिर्जाई, ठीक है, आप
ایسا رشتہ دار आपने نہیں ہے अपने جو गालियां आंटियों के देता बारे में, अपने भाइयों के बारे में देखिए बताया है मेरी बात मेरे सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, क्यों पीर तुम्हारे साहब मेरे रिश्तेदार हैं? नाना अबू अल्लाह जन्नत बख्शे उनकी 2 बहनें थी, यानी आपने मेरे ये नाना कहा, की सुन आपके नहीं आंटी अपने बहनों के बारे में आपने कहा है मेरे सामने, झूठ बोलोगे? मेरी बहनें आपने जब गुफ्तगू कर रहे थे, जी। आपने बेटियों के बारे में, कुछ अपने दामादों के बारे में, ये तमाम बातें जिस दिन आप ये कह रहे कि तुसी तो 90% मुसलमान है, उस दिन आप कह रहे हैं। लानत जी बस खत्म हो गई ना, तो आपके तो रिश्तेदार तो हैं, अभी आप इस पे नाराज मत हो जाए, बात सुन लीजिए। छोड़ दे यार रिश्तेदार पप्पू मेरे भी हैं, ये कोई गुस्से वाली कौन सी बात है? मेरे भी रिश्तेदार भाई बताइए। आप समझ नहीं रहे, यार, ये नहीं ये पप्पू ने कह खुद रहे हैं माना गालियां है देते, ना। मेरे किसी रिश्तेदार ने आपको से गाली दी है, और जो मेरे रिश्तेदार अच्छा, हैं वो मुझे बात पता तो भी नहीं ना, करने मैं देना। उससे मिला हूँ, मेरे वो भी मुझसे मिले हैं, रिश्तेदार अजीब बंदे हो यार बताइए। तुम। बात जी, कर आप- लेने थे, बात करना। आपने खुद ये इकरार किया है कि आपके रिश्तेदार हैं, आंटी भी हैं, बहनें भी हैं, ये भी आपने खुद कहा है। अभी नहीं मानोगे तो मैं इसमें क्या कर मेरी सकता हूँ? आंटी यार बहनें शहनें मेरी कोई नहीं है ना, मेरी जी। कोई आंटी है। मेरे नाना बहू की वो जो वफात वाक़ जैसे उनकी 2 बहनें थी जिनको सारी जिंदगी मैंने नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा ना, मेरी माँ को देखा है। खैर मैं तो देखा होगा अच्छा, शादी से पहले, उसके बाद रिश्तेदार हमारा तलब रिश्तेदारी नहीं है। तो है ना कादियानी से। जब उनकी अगली नस्ल आई है, इससे तो पीर साहब हर बंदे के कोई ना कोई रिश्तेदार तो निकल आएगा, हर बंदे का कोई ना कोई तो रिश्तेदार निकल आएगा। ये तू झूठ बोलिया थे। अजीब पप्पू जी, बंदे हो आपकी यार। रिश्तेदारी तो है ना, कादियानी से रिश्तेदारी है ना पप्पू जी? नहीं, उन्होंने आपकी कोई गाली दी है मेरे रिश्तेदार को, आप जानते हो किसी को? और आप जैसे घटिया लोगों से तो हजार दर्जे बेहतर ही होंगे, गाली बात तो नहीं है। जितने मुझे गालियां मेरे मुसलमान देते हैं, कादियानियों ने तो कभी नहीं इतनी दी। अखलाक किनका अच्छा हो गया? देती है ना, अखलाक किनका वही अच्छा तो हो कहता गया? हूँ, ये जो नहीं हर देती है टाइम ना। भोंकने वालों का अखलाक अच्छा है या कादियानियों का अखलाक अच्छा है? आप मुझे बता दें। आप हालांकि मैं उनको मुखालिफ मैं हूँ, कहता मुझे हूँ गालियां आपके नहीं देते, रिश्तेदारों इतने तो नहीं देते। का, मैं कहता हूँ आपके रिश्तेदारों का जो मेरे कादियानी वो रिश्तेदार अच्छे तो आप हो, मेरे रिश्तेदार तो आप लोग हो, सारे मुसलमान तो मैं मेरे तो आप रिश्तेदार है, जैसे लेकिन मुझे लोगों को मेरे अपना ऊपर ही जूता भोंकते सीधा रहते हैं। करने के लिए कहूंगा नहीं। मैं तो अगर कहता हूँ आप मेरे ऊपर ही जैसे लोग मेरे मुसलमान है तो मुझे शर्म आना चाहिए अपने कहते आप हैं, जैसे कहते हैं ना, जो सड़ा कुत्ता सानू ही पै गया, वो मेरे मुसलमान रिश्तेदार मुझे पे भोंकना शुरू हो जाते हैं। पे। मैं आप बताइए, उसी मैं क्या वक्त करूं? में जहर पी के अपने आप को मरना पसंद करूंगा। क्या हाँ? किस बात जहर पे? पी के किस मर बात जा। पे? किस बात पे? किस बात पे? मुसलमानों के घटिया लोगों- खिलाफ इतना जो है घटिया घटियापन है लोगों की तुम्हारा। गालियों पे मैं मर जाऊं? घटिया लोग तो शुरू से हैं और क़यामत तक रहेंगे। घटिया लोगों को कौन अब सुन लीजिए पप्पू, क्या करता है? तेरे जो जो रिश्तेदार गाली देते हैं, सुन तो लीजिए, आपको गुस्सा क्यों हो रहा है? आपके रिश्तेदार कादियानी जो गाली देते हैं, जानना चाहते हैं वजह क्या है? और आप जो इस तरह आग बगोला हो जाते हैं, पता है वजह क्या है? वजह यह है कि आमने सामने तुम लोगों की औकात नहीं तेरे रिश्तेदारों की कि मुकाबला कर सकें। हाँ, नेट पे बैठ के मगर नानुतियों को गाली दे दी, क्योंकि वो बड़े जो बड़े तुम्हारे जैसे अकाबरीन को। दहशत गर्द लोगों से डरते हैं ना, तुम लोग जो दहशत गर्द हो, कभी किसी की मस्जिदें गिरा देते हो, कभी किसी की इबादत करके किसी की बेटियों को उठा के ले जाते हो, तो तुम जैसे दहशत गर्दों से वो डरते हैं ना, इसलिए नहीं आते। ये और जो कुछ और सुनना है? जो मुर्तद हो उसका माल हलाल मुसलमानों पे, अब इसको आपको लानत तकलीफ है होगी। तेरी इस बात पे, लानत है मुर्तद हो। किधर लिखा हुआ है बेशरम आदमी मुर्तद? तेरा बाप मुर्तद हो तो मैं उसको उठा के ले जाऊं तेरे बाप को? बेशरम आदमी, इस्लाम को बदनाम करने वाले घटिया लोग। किधर लिखा है मुर्तद का जायज है? ये देख- बेगैरत लोगों, इस्लाम ये का देखो, ये है कादियानी का बच्चा, देख ले, ये कादियानी के बच्चे का जुबान है। बाप का यानी तेरा बेचारा कादियानी का बच्चा पप्पू, ये है तेरी जुबान। तुम लोगों की औकात ये है बाप का कि तो मुझे- आमने सामने तुम लोग अपने साय से भी डरते हो, लेकिन पर्दे के पीछे अपने बाप तो को भी बरेलवी है। तेरा बाप कौन है? जी, मेरे बाप मेरा बाप वो जो तेरे बाप को जलील कर दिया, पतवा लगा दिया कि तू काफिर है, मुर्तद है, समझ रहे? मेरे बाप की हैसियत क्या है? नेट के पीछे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकना। तुसी तो मुसलमान हो, थू मुसलमान। नहीं सुनो, अच्छा है क्या अच्छा सुनूं? मैंने देखा, क्या मैं सुनूं? पहले 10 दफा कह चुका हूँ, उनकी मेरे मैं मुंह से तुम्हें निकला ये था कह रहा हूं 90% कि तेरे उनके वही रिश्तेदार कायदा है जो हमारे। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, कादियानी लानत अल काज़िबीन, तू जा बाहर में मेरी अपने तरफ से। रिश्तेदारों पे बेगैरत करो, मुझे आदमी, बेशरम आदमी, घटिया इंसान। कहो तू मेरे मुझे खानदान, क्या? मैं तुझे अपना खानदान बता दो, तू अपने मैं कहता हूँ तेरा खानदान फिर पता चलेगा कौन वगैरह से। जाहिल गवार बेशरम इंसान है आदमी। और कुछ भी नहीं है। तू जाहिल खानदान का जाहिल गवार कादियानी है और कुछ भी नहीं है तू। तारों का हाँ, से बैठ के अच्छे ही हैं, मुझे तो मुसलमानों लग के रहे हैं। खिलाफ
ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। माजरत चाहता हूँ भाई, माजरत चाहता हूँ, एक फोन आया था, ये जाहिल खानदान का जाहिल गवार कादियानी कहाँ चला गया? मुसलमानों को गाली देते हो? हाँ, अशरफ अली तानवी जैसे एक मुज्तहिद हकीम उल उम्मत को तेरा जैसा एक कादियानी गाली देगा, हम खामोश रहेंगे? दो आओ, दो गाली। जाहिल खानदान का जाहिल गवार इंसान। पप्पू अमर भाई आंदे ना फिर उत्ते आई सही है। हम अमर भाई आंदे आ सिर ना खपा के हमको बाबा काम भी करना कि हम तेरी लड़ाई करूँ ऐसे रुक दे आज ये काम छड़ के। जी पीर साहब आप बोले। छोटा साहब है वो की कर रहे हो? जी मैं इत्थे ही हाँ, बस वो पप्पू ते यार पप्पू साहब से दिमाग को ना पप्पू का रोका करो कि ਅਸੀਂ थोड़ा काम नहीं लगे हो जेल से भरा बैठे हो अच्छा मैं जी चोर मारे तो बंदा रोक लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये कादियानी आपको मालूम है क्यों गाली देते हैं? पहले आपसे ये मनवाना चाहते हैं जिल्ली बुरूजी तो मान लो। जिल्ली है, बुरूजी है, कुछ भी नहीं है। क्या हकीकत है इसकी? कुछ भी नहीं। जब आपने जिल्ली बुरूजी मान लिया, फिर जो है आस्ते आस्ते भाई जिल्ली बुरूजी तो आपने मान लिया है, बस नबी मान जाओ थोड़ा थोड़ा। पहले बच्चों को नहीं बताते, हम तो इसको जो है एक मुज्तहिद है। आमिर भाई ने कल पूछ भी लिया था कि बच्चे हैं, बच्चे को क्या बताना, किसी को मालूम ही नहीं, बच्चों को बताते नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताते रहते हैं अपने बच्चों को जी। और यहाँ पर वो गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने देख लिया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई गिरफ्त है तो नहीं, इसलिए जो मुंह में आए कह दो, कोई मसला नहीं। इसलिए आपको गालियाँ पड़ती हैं, इसलिए हमें गालियाँ पड़ती हैं भाई, और कुछ भी नहीं है। ये जाहिल ख़ानदान का जाहिल गवार इंसान पप्पू, जिसके 7 नस्लों में कोई भी आलिम दीन नहीं गुजरा होगा, अब ये आके यहाँ पर आलिम दीन को गाली देता है, मुज्तहिदीन को गाली देता है। देखिए अभी मेरे वालिद को गाली दे दी, इसने खुद ये इतराफ़ किया है कि इसके ख़ानदान में इसके आंटी, इसके भाई, इसके बहनें वो कादियानी थे, खुद माना है। और कादियानी को 90% ये जो है मानता है कि मुसलमान है, लेकिन जब इनके सामने कहो, हमारे सामने कहो, देखो किस तरह आग बगोला हो जाता है। तो ये है असल हकीकत, ये है तुम लोगों के भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान। पीर साहब कैसे मिजाज है? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। अच्छा पीर साहब, कल याद है किसी महफिल में हम दोनों मौजूद थे, जी वहाँ पर यजीद बिन माविया के बारे में, औलिया किराम के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में बातचीत हो रही थी।
और किस तरह बगैर किसी एक सेकंड का लिहाज किए किस तरह यजीद बिन माविया पे बार बार लानते एक शख्स कर रहा था। यही जाहिल खानदान का जाहिल गवार पप्पू कर रहा था। सुने तो सही ना, अर्ज तो सुने ना पीर साहब, अर्ज मैं तो नाम लूंगा ना, आप नाम भले मत ले लें फैसल भाई, क्योंकि इसने मेरे सामने बहुत गलत से एक शख्स उसको बताया गया, एक शख्स उसको बताया गया कि ये कलाम है, ये रिवायतों में मौजूद है, ये तरीकों में मौजूद है, उसको पढ़ पढ़ के सुनाया, वो फिर भी बाज नहीं आया। उसने कहा नहीं, मैं लानते 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 औलिया इकराम की तरफ वो बातें जो औलिया इकराम ने की भी नहीं है उनको मंसूब कर जो नबूवत का झूठा दावेदार बनता है उसके सबूत भी दिखा दिए गए। तो कहा गया सॉरी, मैं इसके ऊपर लानत नहीं कर सकता। ये अगर मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है कि मुसलमानों के ऊपर लानत। यजीद बिन माविया, मैंने आपको बताया था, जितना बड़ी उसके ऊपर आप जुर्म लगा दें, जितनी बड़ी उसके ऊपर हद लगा दें, वो इन दी एंड रहेगा वो मुसलमान ही, आप उसको काफिर साबित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसा शख्स है लानती मरदूद कज़ाब दजाल, जिसका कि कुफर और जिसका कि दजल सामने रोशन है, यहाँ जिस तरह सूरज निकला होता है उस तरह है, उसके ऊपर बंदा लानत ना करे, मुसलमानों के ऊपर करता रहे। औलिया इकराम जिनका इन बातों से कोई लेना देना भी नहीं है जो उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, किसी शख्स ने, किसी जाहिल ने, किसी ला इल्म ने ना जानते हुए कोई सुनी सुनाई बात उलमा इकराम की तरफ मंसूब कर दी, उस चीज़ को बेस बना के उलमा इकराम, औलिया इकराम सब के ऊपर लानते कर दी। लेकिन जनाब वो मर्ज़ियों को कुछ नहीं कहा जा सकता, इंजीनियर अली मिर्जा को कुछ नहीं कहा जा सकता, फैसल मेरे भाई, गामदी साहब को कुछ नहीं कहा जा सकता। फैसल मेरे भाई, सही अहादीस रसूल का इनकार, फैसल मेरे इसका भाई, जो उसको खोल के दिखाया कि बुखारी के अंदर सही सबूत के साथ मौजूद है, मतन भी इसका मौजूद है, उसका इनकार हो सकता है, लेकिन गामदी को कुछ ना कहो, इंजीनियर को कुछ ना कहो, इंजीनियर को कहा तुमने तुम्हारी मुनाफिकत नहीं है तो क्या, थोड़ा गाइड करें। चलो एक मिनट भाई जान, सुन तो लो भाई। बात यह है कि एक बात आप कर सकते हैं कि देखिए भाई वो करते हैं लोग जो लानत करते हैं ना, उनका अकीदा है लानत करने का, भाईजान सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं जो करते हैं उनको नहीं रोक रहा, लेकिन जो लोग कहें हमारा तरीका ही नहीं है लानत करने का, हम कज़ाबो दजालों पे लानत नहीं कर सकते क्योंकि हमें हुक्म नहीं है लानत का, हमें प्यार से तबलीग करनी है। उन भड़वों को क्या हो जाता है, तब वो भड़वों के मुंह जमाने की इतनी बातें होती हैं। भाई सुन तो लीजिए, आपका सवाल सुन लिया भाईजान, आप एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे की भी सुन लीजिए। प्यारे भाई इतना बहुत है कि देखिए अशरफ अली तानवी पे इसने लानत की, मेरे वालिदैन पे इसने लानत की, किसी पे ये लानत कर सकता है। जब आप कहो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मैं तो लानत तो नहीं करूँगा उसको उसको लानत नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है गुलाम अहमद कादियानी इसके वालिद मोहतरम का भाई है, इसलिए उस पर लानत नहीं करेगा, बाकी सब गैर है। क्या वजह है? इतनी सी बात है मेरे भाई, ये जाहिल खानदान का जाहिल गवार कादियानी है और कुछ नहीं। और इस पप्पू जाहिल ख़ानदान जाहिल गवार इंसान का ख़ानदानी जो है जाहिल को कहीं रोडों पे यही बात पूछी गई, क्या लानत करोगे गुलाम अहमद कादियानी पे जिसने जो है नबूवत का दावा कहा नहीं, लानत किसी पे नहीं की जा सकती, लेकिन मेरे वालिदैन पे लानत की जा सकती है, फैसल आपके वालिदैन पे की जा सकती है, अशरफ अली तानवी पे की जा सकती है, यजीद पे की जा सकती है, किसी भी मुसलमान पे आप लानत कर सकते हैं, लेकिन गुलाम अहमद कादियानी पे पप्पू नहीं करेगा। वजह बताएंगे इसकी क्या वजह है? एक मुसलमान को एक फतवे की बिना पर उसने एक गलत फतवा दे दिया, उसकी एक गलत इबारत है, उस गलत इबारत की वजह से
उस पे फतवा लगाएगा, लानत उसको वो करेगा, इस्लाम से खारिज करेगा। लेकिन गुलाम मैं अहमद आपको ये बताऊं, ये सारा कसूर पता किसका है? ये अली इंजीनियर का कसूर है। आप मानिए मेरी बात, सिर्फ इंजीनियर के मानने में जितने भी हैं ना, सेम की कॉपी है। जैसा भाई। उस्ताद वैसे चेले, ठीक हो गया? मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने मुझे तो कज़्ज़ाब कहा। आप यही समझ रहे हैं आस्कानी झूठ बोल रहा है। अब मेरे लिए मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैं जितनी भी बातें करूँगा, आपका अकीदा ये होना चाहिए आस्कानी कज़्ज़ाब दज्जाल है, क्योंकि आपने यहाँ पर बयान दे दिया कि झूठा है, बात ही ख़त्म हो गई। ये कह रहा हूँ अली मैंने भाई, सिर्फ यही बोला था, आपने आप सर्टिफिकेट दे दिया आप झूठ मुझे बोल कि रहे हो सर, मैंने आस्कानी, सिर्फ ये बोला था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे कुछ गलत हो गया। अगर आपको बात कहने की ये नहीं था कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ वो होता है, याद रखना। अली तारीफ सुन लो झूठ की, सुन लो। एक मिनट फैज भाई, मेरी अली बात एक सुनो। दफा सुन लो, सुन लो। जो मैंने बोला था वो बात खत्म हो गई है। पीर साहब जरा मेहरबानी ना करें, ठीक हो गया? अभी फैज भाई दफा करें, कोई और बात करें, छोड़ें, कोई और बात करें। फ्यूचर के लिए सुन लो, से हमाकत ना हो, ऐसी आपसे बेवकूफी ना बैठा हो। रहता है ना, पप्पू साथ बैठा था ना, ऐसा हाँ, हो ये जाता मैं है, क्या आपको भी करें बताता बंदा? हूँ, अली आपका भी क्या कसूर है। मेरी बात सुनो, ये जो जितने आप लोग यंग बच्चे हो ना, जिनसे इस तरह की नहीं करनी चाहिए, ये भी बताएं। अच्छा देखिए अली भाई, नहीं अली मुझे भाई, पहले ये बताएं, पीर साहब आपने उसके लिए अभी क्या हुक्म है जब वो कोई दूसरा बंदा आपने- दोबारा बात करे, उसके लिए क्या हुक्म है? पहले मुझे ये बताएं। मैंने हाँ, उतनी देर बता रहा हूँ, माइक बता रहा हूँ। म्यूट नहीं करना। आप लोगों को सिखा दिया हुआ है। बता रहा हूँ ना भाईजान, आप अली ये अली पूछ, यही रवैया है जो आपको इंजीनियर अली मिर्जा सिखा गया होगा सब लोगों को, को कि एक दफा बदतमीजी कर दो और उस बदतमीजी पे अड़ जाओ बस। तो फिर जो भाईजान। मर्जी कोई आके सही भी आपको बात बता रहा हो ना, तो मैंने नहीं सुननी, क्योंकि ये बात मैंने की है या मुझे किसी ने बताई है, मेरे बड़े ने बता दी, रामजी ने बता दिया, उसने बता दिया। अब मैं फैज भाई, ये अली जाहिर भाई, खानदान का बात जाहिर से गवार आदमी आ गया। सुबह फैसला हो गया सी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये फैज भाई, मैं भी प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जाहिर खानदान फैज का भाई, जाहिर गवार भाई आ गया। अच्छा, मतलब आप जाहिर झूठ की खानदान का तारीफ जाहिर नहीं गवार सुना जा रहा है कि इंसान, झूठ होता अली क्या सही है। कह रहे हैं। तू मुझ पे लानत कर सकता है, मेरे वालिदैन पे तूने की है, अशरफ अली तानवी पे तू करता है, यजीद पे तू करता है, ये जो गुलाम मोहम्मद कादियानी ये तेरा चाचाजाद भाई है, इस पे नहीं कर सकता? देखिए, मुझे किसी पे लाना नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो मेरे वालिद पे क्यों क्या, और यहाँ अशरफ अली मेरी तानवी पे बात क्यों खत्म हो है ना फैज भाई, फिर इसको इसके ऊपर कौन ले रहा है? मुसलमानों को क्यों करते हो? मुसलमानों पप्पू को ऊपर कौन ले रहा मुसलमानों है? को क्यों लानत करते हो? पप्पू को मैं ले रहा हूँ, कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा, आप ही ले रहे। मैं ले रहा हूँ, रुक दे, क्या मसला खड़ा हो? मसला ये है आमिर नज़ीर भाई, मसला ये है कि पप्पू मेरे वालिदैन पे लानत करता है, मुझ पे लानत करता है, अशरफ अली तानवी को लानत की भी आपके सामने, यहाँ मेरे वालिदैन पे इन्होंने लानत की, और यजीद पे लानत करता है, तमाम मुसलमान जहाँ भी इसकी लड़ाई हो जाए वो करता है, लेकिन गुलाम मोहम्मद कादियानी पे नहीं करता। क्या उसके चाचाजाद भाई नहीं है? हम क्या समझे? ज़ाहिरी बात है, या उसको नबी मानता है या उसकी कोई ख़ास रिश्तेदारी है, क्योंकि उसको कुछ नहीं कह सकता। मेरे वालिद पे इन्होंने यहाँ लानत की, मुझ पे की, आपके सामने हकीमुल उम्मत पे की, यजीद पे कुरान डुला करता है। वो बात तो सवेरे रिजॉल्व हो गई ना, फिर अभी 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 भाईजान, अभी अभी अभी
अभी की अभी है, फिर उसने कोई इस तरह की बात कही है। अभी फिर मेरे वालिदैन पे तो लानत, उसने ना बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी उसने अभी। मेरे वालिदैन पे लानत की उसने अभी अभी मुझ पे भी की, अच्छा, मेरे अभी वालिदैन ना पे की। ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕਾਂ ਥੱਲੇ रुक ਟ੍ਰੇਨ जा। ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ रुक जाए यार, मैं नमाज पढ़ने गया हूँ। 1 मिनट फैसल भाई, आप बात सुनाएं। क्या किसने ज्यादती किया? ये तो नहीं ना कि यहाँ सारा दिन ये काम चलता रहना है। नहीं, मैंने तो फैसल भाई सही बताएंगे फैसल भाई। मैंने तो किसी का नाम लिए बगैर एक किरदार का जिक्र किया है, नाम मैंने किसी का नहीं लिया, एक किरदार का जिक्र किया है कि कुछ लोग नहीं, आप ऐसे सीधी बात बताएं। पप्पू ने बदतमीजी की है, वो कह रहा है मुझे कॉल पे ले, मैं बताता हूँ। अब मुनाजरा तो नहीं करवाना ना। पप्पू को अपनी जुबान से बता तूने पीर साहब के वालिद के लिए क्या चलो बात राजा की साहब है। आ गए, राजा साहब फैसला करने। गल सुन, खामोश हो जाओ। ये पंचायत ही सारा दिन निबेड़ी लेनी। राजा साहब आ जाओ, है फिर केस बनया पिया। ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। आमिर भाई पीर हाँ, बोलो भाई। अल्लाह दी कसमें ना आंदिया साल लिखा है जी पप्पू के खानदान वाले हैं ना जो कादियानी ये गालियां वो तो देते हैं। मैं मैं क्या सुन पीर गया। साहब नहीं होने सुन के होना होने दोबारा मैं क्या पीर साहब मेरा कोई खानदान वाले कादियानी नहीं है जे दूर पार दी है भी सन ते यार साड़ा दा कोई तलक नहीं है ते उन्होंने कितनी गाली कढ़ी है नहीं कि ये जो बराडो पे बैठे होते हैं ये जो मना मैं क्या मेरा कुछ नहीं लगता मैं बारहा इन्होंने मना नहीं तेरा अब्बा का दे नहीं मैं क्या तेरा अब्बा का दे नहीं होएगा। फिर मेरा मीटर घूम गया। मैं क्या फिर मैं क्या पीर साहब तुहानू इज्जत रास नहीं आती तुसी सुबह मैं आमिर भाई दी वजह नाल खामोश रहा फिर तुसी पप्पू पप्पू पहला- पप्पू लाई हुई है। पहला पीर अस्कानी भाई ने कहा कि तेरा अब्बा कादियानी है। अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरी फैमिली पे अटैक किया पहले तेरी बहने का दिया सवालिया- नहीं भाई का दिया नहीं नहीं आमिर भाई उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा है कि तुम जो मेरा सवालिया अंदाज तेरी मां का दिया नहीं कैन आई आस्क यू इज योर मदर कानियानी सवालिया जात तोड़े सवाल दी ऐसी नहीं तैसी मेरे से को पूछेगा बेशरम मेरे से लोग। को पूछेगा पप्पू Oh, who मेरे से the को fuck पूछेगा are you to ask me questions like this? ये ले कादियानी तेरी फैमिली का दिया दो टके लोग तुसी मेरे को क्वेश्चन कर यार आमिर भाई एक इंसान की इज्जत होती है यार ओए गल हर सुन, तू प्रांत गालां के कड्डी जाने कादियानी सवाल पूछा मैंने बकवास तेरा कर, गालां तेरे कड, बंदे वाली गल कर। तुम्हारी वालदा का दिया आमिर भाई ठहर जाओ आमिर भाई चुप कर जाओ 2 मिनट ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ मैं थल्ले मैं निकलन लगा, मैं बराड़ छड्डन लगा। क्यों ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਓ। नहीं फैज फैज ਤੁਸੀਂ तुसी ਨਿਬੜ ਲਓ। कलमा खुदा दी कसम चुको ना सवाल किया मेरे को खुदा दी कसम चुक तू मैं भी चुकना क्वेश्चन सी और स्टेटमेंट सी ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ पीर साहब आके स्टार्ट हुए मैं तो स्टार्ट ही नहीं हुआ यार बात कर रहा हूँ पप्पू मैं आमिर भाई से बात कर रहा हूँ आपसे जब बात करूंगा ना इंशाल्लाह मेरे भाई आप जवाब देना अब मैं आमिर भाई से मुझे पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ اخلاق ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ इस करके तुझे चुप कर जाओ मेरे बाप को आप जो मुझे कादिया बताओ दिखेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं मैं आपसे जो मेरे मुखातिब बाप को कादिया हूँ दिखेगा मैंने कहा मेरा बाप बरेलवी है बरेलवी सुन्नी मुसलमान है मैं एड्रेस आपसे लेना है मेरे मुखातिब हूँ मैं एड्रेस देता हूँ मेरा बाप पुलिस में है जाओ जाके मिल लो उससे रावलपिंडी में बताओ कौन से थाने में है और ये जो टिकटॉक पे ना इनकी कोई पिक्चर है ना कोई इनकी वीडियो है ना कुछ पता नहीं पीर बने हैं किधर से आए हैं किधर नहीं मेरे खानदान का जानी बोलेंगे आपके वालिद पुलिस में थे आपके वालिद पुलिस में थे मेरे वाला साहब पुलिस में जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेरी पिंडी में है क्या कर रहा है उनका ठीक है अच्छा फैसल भाई मुझे अगर मेरा बाप कादियानी निकल आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिसन मेरा अगर बाप कादियानी निकल आया ना मेरी गर्दन उतार देना जाल खानदान के जाहिल गवार को जरा सुन लीजिए कभी रिश्वत ली है उन्होंने मुझे बताओ भाई थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए भाई मेरी बात सुन लीजिए जी पीर साहब बात यह है कि ये जो पप्पू है ना जाहिल गवार ख़ानदान का जाहिल गवार इंसान ये मुझे लानत करता है मेरे वालिद को लानत करता है अभी की है आपके सामने आज अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत भी की है और मुसलमानों मैंने अशरफ अली थानवी को लानत नहीं थी की आपने मैंने कहा उस भारत पे की थी कि अगर जो उनको मानते हैं उस भारत को मान के जो उनका ईमान है उन पे लानत है
ये कहा था ना, लेकिन उनको कहे लेकिन आपके चाचा साहब भाई आपका चाचा गुलाम मोहम्मद कादियानी पे नहीं कर सकते। पता ही नहीं क्यों करता, तुम जैसे घटिया लोग मुझे मुसलमान का सर्टिफिकेट फिर भी नहीं देंगे तो मैं नाम भेजता हूँ तुम्हारे सर्टिफिकेटों पे, ठीक है? तुम जैसे घटिया लोग मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपके चाचा, आपका जो चाचा लानत भेज दूं। मुसलमान तो मैं भी लानत भेज दूंगा, आपके ऊपर लानत नहीं कर रही है, सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं उसके ऊपर लानत भेज दूं मिर्जे कादियानी पे, मुझे मुसलमान समझ जाओगे? और 2 टक्के के लोगों तुम तो फिर भी मुझे मुसलमान नहीं समझोगे। बदतमीजी ना कर। पानी है तुम्हारे पास? नहीं अंदर नहीं है, वॉश बेसिन फुल्ली के लिए। हाँ बस फुल्ली कर रहे हैं। अच्छा भाई देखें, ये जाहिल खानदान का जाहिल गवार पप्पू, पप्पू को मेरी यार प्लीज साहब आप जज्बाती हुए हैं, आप भी पप्पू को एक मिनट नीचे उतार दे प्लीज। नहीं कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ही रहने दें। आप उठाया उसको तो उठाया तो नहीं यार, ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾ ये सिग्नल बंद हो गए, मनो ना कि क्यों है। तो मेरा चले जो भी है, अब आपने उसको उतार दिया। जवेद साहब थोड़ी सी मेरी बात सुन लें, थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। जी साहब आपकी सुबह से सुन रहे हैं, मुझे भी मौका दे दें। मैं कोई अगर झगड़ा बजाने तो नहीं आया, सुबह 6 बजे का लाइव पे बैठा हुआ हूँ। एक दफ़ा पहले मैंने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की थी, आपकी प्रॉब्लम की रोक दिया। अब मैंने कुरान आपके सामने फैसला किया कि कुरान आप लोगों को सुनाने नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कुरान को बंदा पढ़ रहा है तो अपनी ज़बान बंद कर लें हम लोग सारे, बीच में उलमा इकराम भी शामिल है, बीच में आमिर भाई भी शामिल है। अच्छा आप लोग 2.5 घंटे कादियानी की बकवास सुनते रहे हैं, जाफरी तबर्रेबाज की बकवास सुनते रहे हैं, उससे रूहानी और जिस्मानी और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें पूछते रहे हैं। उस चीज़ के ऊपर आपको एक आयत पेश कर रहे थे जो आपके मसले का हल है, आप सब ने रौला डाल दिया। मैं रिक्वेस्ट करता रहा 5 मिनट तक कि यार ये एक आयत सुन लें, एक आयत सुन लें। आपने कहा नहीं ये दूसरी हमारी मंतकी बातें चलने दो, आप चुप कर गए। मैं सुबह फिर चुप कर गया। अली से पूछ ले, मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ, 6 घंटे हो गए इस लाइव के ऊपर, सिर्फ 2 मिनट के लिए आया था आपको एक कुरान की आयत सुनाने के लिए, उसके बाद मैं नीचे जाके बैठ गया था। अभी दोबारा पप्पू की बदतमीजी सुन के मैं आया हूँ। अगर आप लोग कहते हैं मैं चुप कर जाऊँ, मैं चुप कर जाता हूँ, लेकिन मैं पप्पू को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अभी आपने मुझसे पूछा मेरी वालदा कादियानी है, मैंने आपको कोई जवाब में गाली दी? मैंने आपको क्या जवाब दिया? नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का नहीं है। इस तरह आपसे कोई सवालिया अंदाज में सवाल कर रहा है, अहमद कादियानी की और जमात कादियान की इतनी साइड ले रहे हैं। आपके कोई रिश्तेदार कादियानी है, आपके कोई वालदा कादियानी है, उसका जवाब होता है नहीं भाई मेरे वालिदैन जो है वो माशाल्लाह मुसलमान है। ये जवाब देना कि नहीं तूने मुझसे ये सवाल पूछा, तेरे बाप को मैं ये कहूँगा, तेरे बाप के ऊपर लानत, वो लानत जो तुम्हें गजाब झूठे दजाल के ऊपर जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है, वो लानत तुम उसके ऊपर नहीं करते कि कादियानियों को बुरा लगेगा, लेकिन सुबह दोपहर शाम तुम बरेलवियों के बापों के ऊपर खुल के लानत करते हो। सुबह दोपहर शाम जो मुसलमान तुम्हारे साथ बैठे होते हैं उनके वालिदैन के ऊपर तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगता देर लगाते लानत करने में, और वजह तुम ये पेश करते हो कि मेरे से पूछा गया कि मेरे वालिदैन इस तरह के थे। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, उसके बाद भी तुम उसके ऊपर लानत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे बाप की शान में किसी ने एक लफ्ज़ सवाल का पूछ लिया है तो तुम्हारी लानत फटाफट निकलती। ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? सोचना इस पे बैठ के। ये बरेलवियों के बापों के ऊपर तो तुम इतने बड़े फतवे लगा दो। इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जब बात आए उसका कोई सवाल करे तो तुम्हारा मीटर घूम जाता है, फिर तुम्हारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब तुम इंजीनियर अली मिर्ज़ा को नबी के दर्जे में समझते हो। हमारी जूतियों की वो तस्बीर भी नहीं बांध सकता जो आपका इंजीनियर मिर्ज़ा है। वो सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के ना अपने स्टूडेंट के सामने बैठ के बात कर सकता है, ना आज तक वो किसी का लाइव कॉल के ऊपर सवाल ले सकता है, ना वो किसी के साथ मुनाजरा कर सकता है। वो सिर्फ अपने कमरे में बैठ के बदबू फूसियाँ मार सकता है और उनको यूट्यूब के ऊपर चढ़ा सकता है ताकि तुम्हारे लाइल्म लोग जिनको ना दीन का पता है ना तमीज़ का पता है, वो उसकी वो बकवास सुने और जाके फिर दूसरों के ऊपर लानते करें। और फिर जब उनको कहा जाए कि जो लानत के हकदार हैं, हकीकी हक है जिनका कि इनके ऊपर लानत की जाए, उनके ऊपर लानत करो तो तुम्हें दीन याद आ जाता है। नहीं लानत तो किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ये मुनाफिकत है मेरे भाई, इस मुनाफिकत का पीछा छोड़ो और कोई इंसानों के बच्चे बनो, बस ये दरख्वास्त करनी है। बाकी मुझे आपका मसला नज़र आ गया। लफ्ज़ में थोड़ा सा जुमला सख्त बोलने लगा हूँ, बेशक वालिद से फ़ोन करके पूछ लेना।
आपकी जो, मुझे पहला ख्याल था कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरबियत की वजह से है, लेकिन अब जो आपने बताया है ना कि मेरे वालिद साहब पुलिस में थानेदार हैं, अब मुझे समझ आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो हराम की परवरिश के, हराम के माल के ऊपर पलने वाले लोग होते हैं, उनकी किस तरह के मिजाज होते हैं, उनकी किस तरह की तरबियत होती है, उनका क्या रिज़ल्ट होता है। तो वो अब मुझे आपका मसला समझ आ गया। आपका इंजीनियर मिर्ज़ा से पहले ही वो जो पुलिस की हराम की कमाई है रिश्वतों से, उसकी वजह से आपके मुंह से ये बकवास निकलती है। तो अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अदो हराम खाई होगी ना मेरे भाई, तभी तो ऐसी फूल झूठी बातें करते हो आप, तभी तो आपको कोई तमीज़ नहीं है। रिस्के हराम अगर पेट में गया हो ना तो वो हराम ही फिर मुंह से भी निकलता है, हराम ही फिर हर जगह से निकलता है, और वही आप हराम कर रहे हो। आपको 50 दफ़ा कहा किसी मुसलमान को गाली नहीं देना जायज़, मुसलमान को गाली नहीं देना चाहिए, आप